वॉइस नहीं सुना रही है मैम। साउंड नहीं आ रहा मैम। म्यूट म्यूट हुआ। हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ, अभी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ मैम। क्लियर है ना? यस। हाँ ठीक है। मैम। तो क्लियर बताओ मुझे कि क्या चाहिए होता है पर्सनल लोन। हम कैसे, आप कैसे मतलब कैसे कस्टमर को ब्रीफ करोगे कि पर्सनल लोन है, क्या है, कैसे करोगे, क्या है मतलब? जस्ट कॉल कर रहे हो आप कस्टमर को, फर्स्ट क्या बोलोगे आप? ओके। गुड कुछ भी आफ्टरनून बोलो, कोई मैम। नहीं। जी गुड गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून क्लियर मैम। बताइए। I'm calling you from the ICICI Bank behalf. Myself बैंक के Clara. बिहाफ से? Yeah. यस। ओके। So you have applied for the personal loan. सॉरी, आपकी You have वॉइस applied for समझ में नहीं आ the. रहा। क्लियर? Hello. Am I audible? यस यस यस, Yes. यू आर You ऑडिबल। have applied for the personal loan in the ICICI. यस यस, आई एम अप्लाइंग। So if you are interested, means I can apply for the. You can send the documents. So required documents is PAN card, Aadhaar card, नो and नो नो, monthly आपको salary. कस्टमर का डिटेल्स, यू आर आस्क्ड टू कस्टमर लाइक व्हाट इज योर नेट सैलरी and which company are you working with whom right now, and your current location, you are situated. Okay, Yes. put the first put the first three question with customer. First one is net income salary. Net salary. Okay. Yes. Okay, if Yes, ma'am. customer is interested, then you are put the question with customer. Your first one is Net net salary salary, and and which current working company location. your yes, your current company, sir. Which company are you working with, sir, right now, and your Okay. current location, sir. Okay, if customer Yes. is rented, so then after that you put the you ask the question with customer, do you have any address proof, sir? Rent address proof. Okay. Yes, ma'am. Ad- Address proof, like rent agreement and postpaid bill, वाईफाई बिल, जो भी आपको पूछना है आप उस क्वेश्चन पुट करोगे। तो अगेन अगेन क्लियर, प्लीज सेम आप फिर से एक बार वो करो। Yes, ma'am. Um, या yes. Hello, ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। I'm calling you from the ICICI Bank on behalf of ICICI Bank. ओके So this call is regarding you have applied for the loan in the ICICI. ओके। So if you're interested, can you please tell me where you're working and what is your net salary? नो एकदम देखो, मुझे आप मुझे बोलने तो दो। आप प्रॉपर आप बोले जा रहे हो ना। आप थोड़ा सा पॉज करना है कि जैसे आपका क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून मैम। ओके, this side Okay. Clara from ICICI, behalf of ICICI Bank. Okay, Okay. so sir, actually ICICI Bank providing you personal loan offer. So you are you looking for a personal loan amount, sir? Are you looking for a like a personal loan amount, sir? आपको Okay. ऐसे क्वेश्चन उसको पुट करना है आपको। यू आर नॉट लाइक होता ना कि आपको रिपीट रिपीट, मतलब आपको एकदम थोड़ा पॉज रखना है, पूछना है, कस्टमर को भी टाइम देना है, सुनना है। नहीं, फर्स्ट ओके, कस्टमर क्या आपका बोलते कॉल ठीक है आप। हैं? हम्म। कस्टमर क्या क्या बोल रहे हो? बोलते हैं? क्या क्वेश्चन बोलते हैं? बस हाँ, सुनना है। उसको सुनना है, हमें कस्टमर को सुनना भी है। आपका पिच ठीक है, ओके। आपने रेडी, आपका आपका प्रोफेशनल लग रहा था कॉल पे कि हाँ, मैं आई एम आईसीआईसीआई फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक एंड लाइक आर यू इंटरेस्टेड फॉर अ पर्सनल लोन, है ना? वो ठीक लग रहा था, बट थोड़ा सा पॉज देना है, रुकना है कि मैं कुछ बोलूँ ना। यस, आई एम लुकिंग, राइट। Yes, ma'am. Yes, अगर आप ma'am. बोलते रहोगे तो मैं फिर बोल ही नहीं पाऊंगी, कस्टमर क्या करेगा लास्ट में, हैंग अप कर देगा कॉल। हाँ, ma'am. ठीक है, तो वो नहीं करना है हमें। हमें कस्टमर को एकदम फास्ट, हमें वो नहीं बोलना है एकदम, मतलब
पट पट आपका मतलब फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चन वो नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, this side Clara from behalf of ICICI Bank. Okay, actually sir, ICICI Bank offering you personal loan like offer. So do you have any requirement in personal loan? Yes, no, दोनों में से एक ही होगा. If he has required, then he told them yes, I ma'am, yes, I haven't Yes. required. Okay, नहीं required है, no, not interested. नॉट इंटरेस्टेड में वहीं पे आपका कॉल खत्म है. अगर इंटरेस्टेड है उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा, यस आई एम लुकिंग मैम, यस आई एम इंटरेस्टेड. देन यू पुट द क्वेश्चन विथ सेम sir, ma'am, could you confirm the first ma'am your details like your net salary ma'am, your company ma'am, your current company ma'am, and your current location ma'am, where are situated ma'am, there is rented or on house ma'am. ओके, तो ये आपको सेकंड Okay. आपको क्वेश्चन पुट करना है. ओके, हाँ ma'am. समझ में आया ब्रेक? समझ में आया ना क्लियर? हाँ जी. कैसे करोगे? आपका पिच आपको लग रहा है आपका प्रॉपर आप कर लोगे, बट आपको थोड़ा सा वही है, अपना पिच को थोड़ा सा वो पॉज रखना है. जो फर्स्ट आप बोलोगे गुड गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में थोड़ा सा पॉज रखना. ठीक है, Okay. कस्टमर को सुनना है कि वो क्या बोल रहा है, वट ही वाज रिप्लाइंग. ओके, Sure. हाँ तो बोलो एक बार, आप ट्राई करो एक बार फिर से, क्योंकि मॉक कॉल भी होगा इसके बाद. अभी जस्ट अब मैं आपको नॉर्मल एक ब्रीफ करवा रही हूँ कि कैसे आप कॉल लोगे, कस्टमर को कॉल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कॉल का ही काम है. कोई आपको देख नहीं रहा है, कस्टमर को आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो. कस्टमर आपको कनेक्ट कहाँ से कर रहा है? आपको Okay. फोन से ही कर रहा है ना. तो आपका वॉइस में एक मॉड्यूलेशन होना चाहिए कि हाँ, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, दिस साइड क्लेरा, दिस साइड वैनिला फ्रॉम आईसीआईसीआई बिहाफ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक. ओके, तो एक मॉड्यूलेशन होना चाहिए, वो सुने कस्टमर कि हाँ यस मैम प्लीज. बोलो आप एक बार क्लेरा. Okay. Good afternoon, ma'am. I'm ओके, calling you from गुड the आफ्टरनून. ICICI Bank. ओके, टेल मी. Okay. This call is regarding personal loan. ओके, Are you yes. looking for any personal loan, ma'am? Yes, Clara, I'm looking. From where are you calling? I'm calling you from the behalf of ICICI Bank. Okay, okay. Yeah. So tell me, Clara, what amount you are providing to me? Personal loan Any? is Okay. how much you're looking for, ma'am? We are looking for only 3 lakh amount. So 3 lakh. Ma'am. yes. उसके बाद आपको प्रोसेस Okay. बताना है कि हाँ, you are like a Can I salaried know person. what is your net salary? My net income salary is 40,000. 40,000. Okay. So Okay. you can take uh, and where you working? Company. Which Company. company are you? Yes. Which I'm company working you with working in? I'm working with Tech Mahindra. Tech Mahindra. Okay. So location, Yes. company location, Company location is Bangalore. Company Bangalore. location are you Okay. asking, or like a home current address you are asking me? Your current address. You Okay, current address I am like situated in Bangalore. okay. Your Yes. native? Yes, I am rented. Okay, ma'am. Since from last 2 years I'm rented like a Bangalore location. Yes, tell me. Okay. What are the documents you have to take the look? I have a postpaid bill. I have a Postpaid bill. postpaid bill. Okay. Yes. Okay. We need Aadhaar card and PAN card Okay. and 3 months salary slip. Okay. Yes, I have 3 months salary slip, Aadhaar, PAN, all documents I have. And apart from any document you need, If you're staying for the rent, we need a rental agreement. okay, rental agreement and Yes, electricity bill. okay, PAN card, Aadhaar card, 3 month salary slip, and 3 month bank statement.
Bank statement. Okay. 3-month bank statement. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. And last question with customer आप पूछना है कि do you have like you share also sir your current address proof. Okay, what you have like postpaid bill whatever you have. Okay, and also आपको एक और यहाँ पे put करना है passport size 1 photo. Okay, Yes, ma'am. passport size 1 photo. लास्ट आपको ये भी आपको बोलना पड़ेगा कि सर मैम प्लीज प्रोवाइड टू मी वन passport size photo also to process your further application, loan application. Okay, ठीक है ठीक है, Yes, थोड़ा थोड़ा ma'am. समझ में आ रहा होगा है ना, Shanti, थोड़ा ma'am. थोड़ा तो समझ में आ रहा है और आएगा। Yes, अब तो आज तो फर्स्ट डे है ना, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए, ज्यादा समझ में आएगा तो फिर। और वैनिला आपको समझ में हाँ आ रहा है ना? हाँ मैम। मतलब समझ में तो आ रहा है ना, बट आप थोड़ा सा हाँ उसको कोशिश करना। हाँ आप मैम। दोनों साथ में ही हो ना, साथ में हाँ ही हो मैम। ना? हाँ, ma'am. देखो क्लेरा, इनको थोड़ा सा लैंग्वेज का है, ठीक है, हाँ. प्लीज आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना। अगर कस्टमर सपोज अगर नहीं लैंग्वेज है कि कन्नड़ा नहीं आ रहा है, कौन कौन सा लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वैनिला? कन्नड़ा तमिल मैम। कन्नड़ा और तेलुगु। तमिल। तमिल, ओके। तो सपोज अगर कस्टमर अगर कंफर्ट, देखो कन्नड़ा तमिल का अगर कस्टमर आएगा तो बात कर ही लेंगे, है ना? नहीं आ रहा है देन प्लीज आप उनको थोड़ा सा हेल्प कर देना। आपको दोनों को एक दूसरे का हेल्प करना। अगर आपको कन्नड़ा नहीं आ रहा, तेलुगु नहीं आ रहा, तो ये आपको हेल्प करेंगे, उनको नहीं आ रहा तो वो Sure, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? दोनों को sure, टीम वाइज okay. काम करना है, इंडिविजुअल भी करना है, अपना टारगेट करना है, अचीव करना है, प्लस अपना एक टीम यूनिटी बनानी है कि मुझे नहीं आ रहा लैंग्वेज, करो आप। जितना आप कोशिश करो कि हाँ जहाँ तक आ रहा है करो, नहीं आ रहा है, हैंडल नहीं हो रहा, तो आप कलर का वो लो। उनका इंग्लिश भी अच्छा है, हिंदी भी अच्छा है, ठीक है? तो Okay. हाँ, तो अभी मुझे वैनिला आप बताओ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट नीड होता है पर्सनल लोन पे, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है? फर्स्ट वन पान कार्ड मैम। ओके। पान, आधार कार्ड, 3 मंथ्स सैलरी स्लिप, बैंक हम्म 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, हम्म रेंट हुआ तो रेंट एग्रीमेंट पेपर, हम्म नेक्स्ट वाईफाई बिल, गैस बुक बिल एंड पासबुक, पोस्टपेड करेंट बिल, बिल, पोस्टपेड, पोस्ट पेड, हाँ, ओके। सबका सिबिल स्कोर होगा। पोस्टपेड बिल, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी रेंट बिल, बिल। वाईफाई बिल, जो भी प्रूफ है एज ए वैलिड होनी चाहिए, ठीक है? हाँ मैम। अगर कंपनी से सपोज अभी रेंटेड नहीं रह रहा है, ठीक है, रेंटेड नहीं है कस्टमर, उनको प्रोवाइड हुआ है कंपनी से, कंपनी से प्रोवाइड हुआ है, तो उनके पास आप पूछोगे कि क्या एड्रेस प्रूफ है, तो वो क्या बोलेंगे आपको कि कंपनी प्रोवाइडेड है। तो उनको हो सकता है कंपनी ने एक लेटर दिया होगा, लेटर हेड एक होता है ना कि लेटर हेड तरफ से, कंपनी के तरफ से एक ऑफर होता है लेटर हेड, वो एज ए जो एड्रेस प्रूफ होगा उनका भी। बट मोस्टली बैंक, हमें कस्टमर का प्रायोरिटी हमें यही लेना है कि रेंट एग्रीमेंट अगर नहीं है, कस्टमर को थोड़ा सा फोर्स करो सर कि रेंट एग्रीमेंट आप अगर नहीं है तो आप बनवा लो, ठीक है? रेंटेड है ऑब्वियसली, बैंक फंडिंग करेगा तो बहुत कुछ देख के ही करेगा ना, किसी को थोड़ी कर देगा कि कोई आके बैठ गया उनको पे बैंक फंडिंग कर देगा, नहीं करेगा। बैंक प्रॉपर देखेगा कि उसका हिस्ट्री कैसा है, एड्रेस क्या है, कल के दिन में पैसा लेके चला गया तो कौन कहाँ ढूंढेगा, है ना? तो वो थोड़ा सा आपको करना है। प्लस अभी आपको फ्रेश फ्रेश पता चल गया कि लोन 5 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, कस्टमर का लोन चल रहा है, क्या चल रहा है हमें। अगर सपोज अगर रनिंग में लोन चल रहा है कस्टमर का, जैसे कि अगर मेरा 40,000 का मेरा सैलरी है, ठीक है, मेरा ऑलरेडी लोन चल रहा है, ठीक है, मेरा सपोज मान लो कि मेरा 15,000 का लोन चल रहा है, ईएमआई दे रही हूँ मैं 15,000 का, है ना? तो उस लोन को हम बैलेंस ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, आपका ही बेनिफिट है। कस्टमर को समझाना, बेनिफिट दोनों तरफ ही है, आपका भी बेनिफिट है, कस्टमर का भी बेनिफिट है। बैलेंस ट्रांसफर मीन्स
एक बैंक से एक सिम का पोर्ट का पता है आपको? जैसे एयरटेल सिम से हम जियो सिम भी कर सकते हैं, पोर्ट करते हैं। हाँ पोर्ट पता है ना, पोर्ट। अगर मुझे एयरटेल का सर्विस अच्छा नहीं लग रहा है सपोज, तो मैं उसको पोर्ट कर रही हूँ, जियो में पोर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है। मुझे ए बैंक अच्छा, मैंने एक लोन चला रही हूँ, मेरा 5 लाख का लोन लिया था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा उसका सर्विस। तो आपने मुझे पिच करा, आईसीआईसीआई बैंक से पिच करा, आईसीआईसीआई में अच्छा बेनिफिट है, सब कुछ फैसिलिटी है। तो आप कस्टमर को ये बोलोगे कि जैसे कि कस्टमर बोल रहा है कि हाँ मेरा रनिंग में ये चल रहा है, ईएमआई दे रहा है, ये दे रही हूँ मैं, है ना। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन ये पुट करना है कि सर ये अगर ए लोन आपका मैं बीटी करवा देती हूँ, बैलेंस ट्रांसफर करवा देती हूँ, बैलेंस ट्रांसफर, एक बैंक का जो बैलेंस है वो दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो वो जिस बैंक से चल रहा है वहां पे क्लोज होके फिर क्या करेगा, जो आप जहां से लोन दे रहे हो वहां पे वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर को क्या प्रॉफिट रहेगा कि उसको दो ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। अगर मैं सपोज 15,000 की ईएमआई ऑलरेडी दे रही हूँ, तो मुझे 15,000 यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। मैं कहाँ दूंगी, जो आप मुझे लोन दे रहे हो उसमें मर्ज करके दे रहे हो, मैं वहां पे दूंगी बैलेंस ट्रांसफर। ठीक है, तो कस्टमर का भी प्रॉफिट हुआ, एक ईएमआई बन गया, टेंशन खत्म है। आजकल लोग भूल भी जाते हैं, ईएमआई डेट चला जाता है, ईएमआई बाउंस हो जाते हैं। तो कस्टमर को डरा सकते हो कि सर आप दो दो जगह ईएमआई दोगे, अगर सपोज अगर एक ईएमआई बाउंस हो गया तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। ठीक है, सिविल स्कोर हिट करेगा, बाउंस हो गए तो सिर्फ, अगर ईएमआई बाउंस हो रहा है तो कस्टमर का सिविल सिविल पे हिट करेगा, पहली बात। ठीक है, बैलेंस ट्रांसफर मीन्स इस बैंक से हम उस बैंक पे अपना लोन को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे बेनिफिट आपका भी है, क्लाइंट का भी है, सबका है। तो जितना मोस्ट ऑफ केसेस में हमें देखना है, अगर रनिंग लोन चल रहा है, कस्टमर को ये पुट करना है, सर ये लोन चल रहा है आपका, कितना ईएमआई जा चुका है सर, इसका मैं बैलेंस ट्रांसफर करवा रही हूँ, आपका बर्डन कम हो जाएगा। ओके, बर्डन कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा सर। ओके, समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? फिर कल थोड़ा सा और समझाऊंगी, ऐसा नहीं है कि अभी सब बता दिया और एकदम, है ना। सेम क्वेश्चन कल भी रहेगा, कल आप पुट करना है। और जो इंफॉर्मेशन अभी आपने भी कॉल ली थी, थोड़ा सा आपको उस पर काम करना है। जो रनिंग ईएमआई या ऑब्लिगेशन कस्टमर से पूछना ही पूछना है। ठीक है, सैलरी पूछ ली, कंपनी पूछ ली, एड्रेस पूछ ला, उसके बाद हमारा लास्ट प्रायोरिटी है कस्टमर का डिटेल्स, मीन्स कि उसका रनिंग क्या चल रहा है, लोन क्या चल रहा है, ईएमआई क्या जा रही है, क्या क्रेडिट कार्ड चला रहा है, क्या नहीं चला रहा है, क्या ऐप लोन चला रहा है। सारा डिटेल्स आपको बनाना है कि सर ये बताओ क्या लोन चल रहा है, इसके अलावा कोई और लोन चल रहा है आपका, कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट पार्ट पे आना है। डॉक्यूमेंट में धीरे धीरे आप जैसे जैसे कॉल लोगे आपका क्लियर होता जाएगा, कस्टमर से बात करते रहोगे तो आपका क्लियर होता जाएगा। आ रहा है समझ? हाँ हाँ मैम। मैम। मैं क्वेश्चन आज नहीं पूछूंगी, कल भी पूछूंगी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हो सकता है कल भी पूछूं, तो ठीक है। घबराना नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, समझना समझाना काम है हमारा। बट आप लोग देखो, मैं समझा सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। समझना आप लोगों को है, कस्टमर से आप लोग बात करें, है ना। तो फर्स्ट फेज कौन है, आप लोगों को, कस्टमर को मतलब कंपनी को भी हो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। कस्टमर बैंक को नहीं जानता है या फिर हमें नहीं जानता कि लोन एट क्लिक क्या है। ठीक है, कस्टमर पहला जानेगा आपको ही, कि मैडम मैं क्लेरा मैम को जानता हूँ, मैं वैनिला मैम को जानता हूँ, है ना। लोन एट क्लिक के बारे में पता है आपको क्या है? लोन एट क्लिक का आपने सुना होगा, अभी ज्वाइन करा आपने, है ना। लोन एट क्लिक हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है तरफ से। ठीक है, कॉर्पोरेट चैनल है। ओके। ओके, ऑलमोस्ट हमें अगर देखा जाए, हमें ऑलमोस्ट 9-10 साल हो चुका है हमें ऑलमोस्ट। ठीक है, हमारा टाइम हो चुका है, टेन्योर हो चुका है हमें इसमें। ठीक है, तो हम बैंक का लोन प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास कम से कम 200 से 200-250 से ऊपर हमारा बैंक के साथ टाइप है, प्लस हमारा एनबीएफसी के साथ टाइप है। एनबीएफसी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर। ओके, बैंक बैंक होता है जहां पे हमारा अकाउंट खुलवाता है, खोलता है ना, एचडीएफसी बैंक खोलता है अकाउंट आपका,
करंट अकाउंट होता है ना, एक अकाउंट ओपनिंग होता है बैंक का, हम पासबुक एक तरह से अकाउंट, सैलरी आ रहा है, सब आ रहा है। नॉन बैंकिंग वो होता है जहाँ पे ओनली फाइनेंस, मतलब ओनली लोन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे कोई बैंकिंग का कुछ नहीं रहता है। वो हो गया नॉन एनबीएफसी। ठीक है, एनबीएफसी हो गया आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, जिसका कोई बैंक का खाते से अकाउंट कुछ भी रिलेटेड नहीं है, वो बस आपको लोन ही प्रोवाइड करवाएगा बैंक को, कस्टमर को। ठीक है। और बैंक हो गया प्रॉपर, जो हमारा अकाउंट भी ओपनिंग कर रहा है, हमारा सैलरी अकाउंट है, हमारा कुछ भी है, वो हमें लोन भी दे रहा है। ठीक है, तो वो हो गया बैंक। दो अलग अलग है ना। कस्टमर को हम दोनों का ही प्रायोरिटी देंगे। कस्टमर को बोलना है कि जहां से आपका अच्छा होगा, जो बेस्ट रेट मिलेगा, जहां से आपका अच्छा करवा के दूंगी वहीं से मैं करवा के दूंगी। पहले आप अभी दो चार कॉल लोगे 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 तो आपको आ जाएगा। ठीक है। कलरा, आपने तो कभी जॉब नहीं करी ना, फर्स्ट है ना आपका, फर्स्ट ही नहीं है ना मैम, आपका किया जॉब? किया किया है है किसमें? किसमें? RMC IT प्राइवेट लिमिटेड। क्या काम था उसमें? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन? हाँ। मतलब क्या करना था? कस्टमर की डिटेल लेनी होती थी, क्या करनी होती थी? कस्टमर को कुछ तो बताना होता होगा ना। हेलो। डाटा ऑन कर लो। हाँ, आ रही है वॉइस? हेलो मैम। हाँ, आ रही है, अभी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रहा तो क्या करते थे आप? कस्टमर को क्या मतलब सेल करते थे? सेल का काम था या फिर डिटेल्स का काम था आपका? है। प्लम्बर्स के लिए और कारपेंटर्स के लिए एप्लीकेशन रहता है मैम। जो भी प्रोडक्ट उन लोगों ने खरीदते हैं, उसके उसके ऊपर स्टिकर्स होता है, क्यूआर कोड स्टिकर्स। इफ दे स्कैन द हम्म। क्यूआर कोड, they will be getting the some points ma'am. ओके। So about the will be explained. ओके, सो दोनों को ही एक्सपीरियंस है, बट लोन का एक्सपीरियंस नहीं है, पर्सनल लोन का एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? Yes बोथ ma'am. योर एक्सपीरियंस, राइट, बट यू डोंट हैव लाइक Yes. एक्सपीरियंस विद लोन, है ना? Loan. ठीक है, नो इशू। हर काम नया ही होता है। ठीक है, तो एक तरह से आपको करना है। कॉन्फिडेंट अच्छा है, दोनों के अंदर कॉन्फिडेंट है, कर लोगे आप लोग। बहुत अच्छे तरीके से करोगे, लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से कर भी लेते हैं, कॉलिंग का बहुत ज्यादा उनको होता है, कस्टमर सुनते भी है लड़कियों का। तो आपके पास वो एक तरह से प्लस पॉइंट है। प्लस आपको थोड़ा सा वही है, अपना पिच पे काम करना है, डिटेल्स पे काम करना है, क्या कस्टमर से हमें मंगवानी है, कस्टमर को क्या क्वेश्चन पुट करना है, और कितना सिविल चाहिए होगा, क्या बताया था मैंने आपको, स्कोर कितना चाहिए होगा मिनिमम? सिविल 700 स्कोर ma'am. कितना? 700. हाँ, 700. मिनिमम 700। और उसके नीचे भी है, तब भी अगर कस्टमर का प्रोफाइल ठीक है, सपोज अगर 680 है, 670 है, ठीक है, तो हम काम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, बट हम उसका प्रोफाइल देखेंगे क्यों क्यों उसका सिविल डाउन गया है। ठीक है। बट हम 700 से लेते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारा चांसेस ज्यादा है कि वो केसेस जल्दी निकल जाता है। ठीक है। बैंक का भी कम कंडीशन होता है ना, पैरामीटर होता है कि ये चीजें होना चाहिए, सैलरी इतनी होनी चाहिए, एज इतनी होनी चाहिए, सिबिल इतना होना चाहिए, है ना? तो वो पैरामीटर में फॉलो करना होता है, तो हम मिनिमम 700 सिविल मान के चलेंगे। ठीक है। सैलरी भी हमें कस्टमर का मिनिमम आप मान के चलो, कस्टमर का जो सैलरी होना चाहिए वो 25 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम अगर बैंक पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, 25,000 की सैलरी मिनिमम होनी चाहिए कस्टमर की। लिख लो आप लोग, मिनिमम सैलरी सबके अलग अलग बैंक की सैलरी वो है, बट मिनिमम आप मान के चलो, अगर बैंक का काम कर रहे हो, 25,000, 25,000 सैलरी मिनिमम होना चाहिए। Okay ma'am. ठीक। और मिनिमम फंडिंग, हम जो फंडिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम 20,000 25,000 रुपए देंगे, ऐसा नहीं। मिनिमम फंडिंग जो होता है बैंक का, वो 1 लाख से स्टार्टिंग है। 1 लाख। ओके। Minimum fund. मैक्सिमम 1 लाख स्टार्ट, मतलब मिनिमम फंडिंग विल कंपनी प्रोवाइड, Okay. लाइक फंडिंग करेंगे जो, वो मिनिमम फंडिंग 1 लाख होगा। ऐसा नहीं कि कस्टमर बोल रहा है कि मैडम मुझे तो 50,000 चाहिए, आई हैव रिक्वायर्ड ओनली 50,000, ऐसा नहीं चलेगा। सर, मिनिमम बैंक जो फंडिंग कर रहा है वो फिर आपका 1 लाख का फंडिंग कर रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग है। ठीक है, आपको कितना चाहिए वो बता दो मैक्सिमम।
बैंक का रहता है, हर बैंक का पॉलिसी अलग है। कोई कोई 50 लाख भी कुछ करता है, कोई 40 लाख भी करता है मैक्सिमम फंडिंग। कोई कोई बैंक तो ऐसा है कि वो 1 CR तक की भी फंडिंग करते हैं, है ना। तो बैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है, हर बैंक का पॉलिसी अलग अलग है। आपको ग्रुप में भेजा जाएगा, जो पॉलिसी वगैरह होंगी ना वो भेजूंगी और भेजे जाएंगे, सर भी भेजेंगे आपको। तो उसमें लिखा होगा कि कितनी सैलरी चाहिए, कौन सा बैंक में क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता। ICICI का हो गया, HDFC का हो गया, आपका यस बैंक का हो गया, जितने भी बैंक है प्रॉपर पॉलिसी के पास जाएगी। ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेरा नंबर है आप लोगों के पास? नो मैम। मेरा नंबर ले लेना, कोई क्वेश्चन रहता है, कुछ भी फंस रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कॉल लगाना। ये नहीं सोचना कि बिजी है या फिर, है ना। अपना काम आपको खुद निकालना होगा, वो आपका प्रायोरिटी है, कैसे निकालोगे आप। मैडम मुझे बताओ कि क्या है इसका, कैसे मुझे कैसे करूंगा, मैं कस्टमर से कैसे बात करूँ, क्या है ना। तो अब आप लोग नंबर ले लेना, मैं आपको दे दूंगी नंबर। और बाकी और कोई क्वेश्चन अभी फिलहाल? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ वॉइस में ब्रेक आ रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? समझ आ रहे हैं मैम। समझ आ रहा समझ आएगा, एक दिन में सब कुछ नहीं समझ में आएगा तो खिचड़ी बन जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा हाँ, पार्ट पार्ट में करना है हमें। ठीक है। आप तो इसीलिए कह पार्ट रहे पार्ट हैं में ना, वो समझ आ रहे हैं मैम। आ रहा है ना समझ में, इसीलिए मैं एक एक करके बता रही हूँ। क्योंकि सारी चीजें एक साथ बता दूंगी तो कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर भूल जाओगे आप लोग। हाँ मैम। एक दिन हमें, अभी फर्स्ट हमारा है तो फर्स्ट हम अपने कॉल पे ही हम फोकस करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे प्रोडक्ट पे आएंगे, फिर हम उसके बाद हम और चीजों पे आएंगे। आपको बैक टू बैक चीजें ना क्लियर होते जाएगी। और आप मान के चलो, आपको ज्यादा नहीं, 10-15 दिन, आप 1 हफ्ता टाइम ले लो, आपको एक एक चीज आपको खुद पता होगी। मुझे नहीं बतानी पड़ेगी, आप मुझे खुद बताओगे कि मैडम ये चीज है ना, ये ऐसा होगा ना। अब 10-15 दिन का टाइम ले लो, आपको खुद पता चल जाएगा सारा। ठीक है। ओके। ओके, थैंक्स अ लॉट रिंकी। कल अगेन हम थैंक यू सर। कल अगेन हम दोपहर 12 बजे से ये ट्रेनिंग सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक मीनवाइल आप दोनों, जो क्लारा और वनीला, जो भी डाउट्स होगा या हाँ। जो भी आपको अभी डिस्कनेक्ट आया होगा ना, आप इसको पेपर पे नोट करना। और कल अगेन जब हम मीटिंग में कनेक्ट होंगे तो सारी चीज़ों को कल हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट। कल अगेन मिलते हैं 12 o'clock। ओके, ठीक है। बाय। बस।